Good morning, dear friend. In today's video, I will discuss the various formulas of positional averages and explain the illustration having three missing frequencies. Today, I will discuss the another positional averages. That is, I have already discussed the median, and now I will discuss other positional measures. Other positional measures में I will discuss quartiles, deciles, and percentile. क्वार्टाइल जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो मीडियन होता है वो डिवाइड करता है पूरी सीरीज को दो पार्ट्स में। ऐसे क्वार्टाइल जो होता है वो डिवाइड करता है द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में ये पूरे डाटा को डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, like this, we have a A and B line. That is, this is the Q1, this is the Q2, and this is the Q3. That means it divides the whole data in a 4 equal part. This is 1 part, 2 part, 3rd part, and 4th part. तो इसके लिए फॉर्मूलाज जो होंगे हमारे सेम मीडियन वाले ही होंगे, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ मीडियन वी हैव यूज्ड 2 एंड हियर वी विल यूज 4। जैसे उसमें हमने करा था इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हमने मीडियन के केस में फॉर्मूला यूज करा था n+1/2, यहां पर हमने लगा देना n+1/4 आइटम। नेक्स्ट हमने डिस्क्रीट सीरीज में जैसे यूज करा था, इसमें Q3 अगर निकालना तो आपने लगा देना 3n+1/4 आइटम, मतलब आगे क्या लग जाना, 3 लग जाना। ऐसे अगर डिस्क्रीट सीरीज में करना है तो सेम प्रोसेस, दैट मीन्स ओनली डिफरेंस इज हियर वी विल पुट द 4 इन प्लेस ऑफ 2। सेम प्रोसेस इज हियर, दैट इज 3n+1/4 आइटम। एंड जैसे उसमें हमने 2 फॉर्मूला यूज करे थे, दैट इज हमने कहा था l+n/2 लगाया था, अब n/ हमने क्या लगा था, n/4 - CF/F इंटू I। अगर Q3 की बात करेंगे तो हमने क्या लगा था ना, l+3n/4 - CF/F इंटू I। That means all the formulas are same as we have used in the median, but only difference is here we are putting 4 in place of 2. In the case of median, we have used 2 and here we have used 4 because quartile divide the data in 4 equal parts. That's why we have used the 4. Now I will discuss the decile. That is decile. Decile divides the data. Divide the data into 10 equal parts। मतलब इसमें क्या होएगा, पूरे डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। तो अगेन सेम फॉर्मूला, D1 इज इक्वल टू n+1/10 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। जैसे उसमें मीडियन के केस में 2 था, क्वार्टाइल के केस में यहाँ पर 4 था, डेसाइल के केस में क्या आ गया, 10। इफ वी वांट टू फाइंड आउट D4 फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, तो हमारा इधर आगे क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। दिस विल बी द फॉर्मूला, प्रोसेस इज सेम। दैट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हमने पहले करा था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाते हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाते हैं। प्रोसेस इज सेम इन ऑल दीज टाइप ऑफ पोजिशनल एवरेज। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, again n+1/10 item, and D4 that is 4 n+1/10 item. And here in the continuous series, if we are talking about continuous series, then we are using n/10th item. That means
D1 is equal to L plus N by 10 minus CF over F into I. और D4 की बात करेंगे, L plus 4N by 10 minus CF over F into I. That means again the same formulas of the median. You can also see. Next is percentile. Firstly, I have discussed the quartile. मीडियन, सॉरी, पोजिशनल एवरेज में मीडियन डिस्कस करा था. नाउ क्वार्टाइल्स की डिस्कशन करिए, डेसाइल, और नाउ आई विल डिस्कस द परसेंटाइल. परसेंटाइल जो होता है दैट डिवाइड द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. 100 equal parts. So formula will be for the individual series n plus 1 by 100. N plus 1 over 100th item. If we want to find out P4, that means here 4. N plus 1 by 100th. And if we are talking about discrete series, then P1 is equal to capital N plus 1 by 100th item. And P4 is equal to 4 N plus 1 by 100th item. And if we are talking about continuous series, then L plus N over 100 minus CF over F into I. If we are talking about P4, that means L plus 4 N over 100 minus CF over F into I. These are the formulas. That means there is the only difference is that in place of percentile, we are using 100. In place of decile, we are using 10. And in place of quartiles, we are using 4. So I will discuss the illustration of missing frequencies. In the case of quartile, suppose illustration, the first and statement is the first and the third quartiles of the following data are given to be 12.5 marks and 25 marks respectively. So data is marks, that is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, and 35 to 40. Then frequencies 4, 8, this is missing frequency, question mark is given. This is 19, this is again missing frequency. 10, 5, this is again missing frequency. And total is given, this is given 72. This is the question of quartile and here 3 missing frequencies are given. That means ऑलरेडी जो हमने जितने वीडियोस में कराई है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, उसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती थी. दिस इज द क्वेश्चन. दैट मीन्स व्हेन 3 फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. नाउ in the statement it is given that first and third quartile, that this is the first quartile, this is the third quartile. Now I will just arrange the data marks, that is 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, then 25 to 30, then 30 to 35, then 35 to 40. I have just arranged the data vertically. Now frequencies are this is 4, this is 8, 10 to 15. This is a missing frequency. I am just putting here x. X is the unknown variable. We just want to find out the value. Then 15 to 20 it is given 19. 20 to 25 again missing.
I am just putting here y. Then 25 to 30, it is given 10. 30 to 35 is also given 5. And this is again missing. So I am putting here z. So this is the n, or we can also say sigma f. So I am just adding these numbers. 4, 8, 12. 12 plus 19, that is 31. It's a 41, 46. 46 plus x plus y plus z. This is the n. Now the same process, जैसे हमने कहा था मीडियन के केस में हमने एक कॉलम बनाना होता है नया वाला, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इस केस में भी बनाएंगे क्योंकि प्रोसेसेस सेम. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 का 4, 4 प्लस 8 दैट इज 12, 12 प्लस x, 12 प्लस x, देन 12 प्लस x प्लस 19, इट विल बी 31 प्लस x. देन 31 प्लस x को जब y में ऐड करते हैं 31 प्लस x प्लस y. देन इस टर्म को जब 10 के बीच में ऐड करते हैं इट विल बी 41 प्लस x प्लस y. नेक्स्ट इज 46 plus x plus y. The next is 46 plus x plus y plus z. So the last term of CF is same as the aggregate of frequencies. Now the given is total is given 72. That means जो frequency का total given है in the statement, it is given n is equal to 72. But I have calculated वैल्यू ऑफ एन एस 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये मैंने कैलकुलेट करी है और गिवन स्टेटमेंट में क्या है 72. तो आई विल इक्वेट बोथ द वैल्यूज. सो 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 72. सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 72 माइनस 46. सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26. This is our first equation. As we know that there are 3 missing frequencies, so I want to formulate 3 equations. 3 equations बनेगी. 3 equations से ही हम लोग 3 variables की value find out कर सकते हैं. अब देखिए लिखा क्या है first quartile. First quartile is given. First quartile means Q1. Q1 is given 12.5. अब ऑलरेडी क्वार्टाइल्स की वैल्यू दे दी है उसने. क्वार्टाइल मींस डिवाइडिंग द होल डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स. तो फर्स्ट क्वार्टाइल उसने दिया 12.5. अब देखिए 12.5 की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? ये लाई कर रही है इस वाले में 10 और 15 के बीच में लाई कर रही है. सो 10 और 15 वाली पूरी लाइन को हम लोग क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे. 10 और 15 की पूरी लाइन को हमने कर लिया अंडरलाइन. सो Q1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? Q1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n बाय 4. यहां पर 2 नहीं लगना 4 लगना. क्वार्टाइल की बात हो रही है. CF ओवर F इंटू I. नाउ लोअर लिमिट इज now in this case lower limit is 10. So this is the 10 and n by 4. n is अगर n by 4 की आपने वैल्यू निकालनी है वो कैसे आएगी? n is given 72. 72 by 4 that is 18. तो इसका मतलब n by 4 कितना आ जाएगा? 18. CF हमने हमेशा पिछली वाली टर्म को लेना होता है. पिछली वाली टर्म हमारी कितनी है? 12. और फ्रीक्वेंसी किसको लेना होता है? उसी रो को. उसी रो में जो हमारी वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी की? दैट इज x. और i हमारा कितना आ जाएगा? i इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट. दिस इज 5. सो आई विल पुट दीज वैल्यूज in this formula. That is Q1 is equal to lower limit is Q1 is given that is 12.5. इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे. L की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 आ गई है. और n by 4 कितना निकाला हमने? 18. CF कितना हमारा? 12. और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? x. और I कितना है? I is given that is I is already given it is 5. तो इसको हम सॉल्व करेंगे.
12.5 minus 10 is equal to 18 में से 12 गए, that will be 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, I will get 30. This will be 2.5 is equal to 30 over x. तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 over 2.5, तो I am getting here 12. That means x की वैल्यू हमारी जो है फ्रीक्वेंसी, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी x थी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है. Now this is again it is given Q3, थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ है. अब हम यूज करेंगे थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला. इट इज गिवन Q3 इज इक्वल टू, Q3 का फॉर्मूला क्या होएगा, L प्लस 3n/4. क्योंकि Q3 है, जब 3 बोला डेट मीन्स यहां पर 3 पुट कर दो, माइनस CF ओवर F इंटू I. अब देखिए Q3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने कहा था फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल. दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल, मतलब Q3 इज गिवन 25. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट. अब देखिए 25 किस में आ रहा है, 25 हमारा आ रहा है इस वाली सीरीज में. इसका मीनिंग है आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है. 25 आपने इसमें नहीं लेना, दैट मीन्स इट विल बी इंक्लूडेड दिस रो. सो इस पूरी रो को आपने अंडरलाइन कर लेना. इसका मीनिंग है लोअर लिमिट कितनी होगी 25. CF कितनी होगी, CF हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, इससे पीछे वाली, दैट मीन्स 31 प्लस x प्लस y. और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी इज 10. और I कितना हो गया, I मीन्स 30 माइनस 25 दैट इज 5. अब सारी की सारी वैल्यूज हम लोग इसमें पुट कर देंगे. दैट इज Q3 कितना है हमारे पास 25, लोअर लिमिट इज ऑल्सो 25 एंड n/4 हमारा 18 आया था. 18 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट 54 माइनस CF कितनी है 31 प्लस x प्लस y ओवर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 10. I कितना है हमारे पास, I इज 5. तो 25 को 25 इस तरफ लेके आएंगे, 0 आ जाएगा. इसको खोलोगे 54 माइनस 31 माइनस x माइनस y, ये कटिंग हो जाएगा, 2 आ जाएगा. 2 जब इस तरफ आएगा तो एट विल ऑल्सो 0. तो इसको जब सॉल्व करते हैं माइनस x माइनस y दैट इज गेटिंग माइनस 23. तो माइनस माइनस कट गया, x प्लस y इज इक्वल टू 23. x की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, दैट इज फ्रॉम Q1 वैल्यू. x की वैल्यू कितनी है 12 है. तो इसका मतलब है x की जगह हम 12 पुट कर देंगे. 12 प्लस y इज इक्वल टू 23. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 11 आ गई है. इसका मतलब है x हमारे पास कितना आ गया 12 आया था, y हमारे पास कितना आ गया 11. बट इन दिस स्टेटमेंट देयर आर 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, y, z. सो हमने z कैसे निकालना है, आई विल पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 26. तो x की वैल्यू कितनी 12, y कितना 11, z इज इक्वल 26. सो z इज इक्वल टू 26 माइनस 23. सो z इज इक्वल टू 3. दिस इज योर आंसर. दैट मीन्स x is 12, y is 11, z is equal to 3. These are the 3 missing frequency. How we have calculated? This is the question. That means I am just explaining once again. इसमें क्या था स्टेटमेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स हमें गिवन थे और 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी. मतलब वी हैव टू फाइंड 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी टोटल गिवन था. तो हमने क्या करा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो जो मिसिंग है उसकी जगह हमने x, y और z डिनोट कर लिया. फिर हमने अपना CF कॉलम बनाया. फिर टोटल मीन्स n की वैल्यू जो स्टेटमेंट में गिवन है वो 72 है. जो आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज 46 प्लस x प्लस y प्लस z. दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. इक्वेट करके ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है. अब मेरे को गिवन था फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज 12.5. फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब Q1 गिवन था. Q1 का फॉर्मूला मीडियन वाला ही रहेगा, बट सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर n/2 की जगह आपने क्या लगा देना n/4. सेम. तो 12.5 गिवन था, 12.5 हमने देख लिया किस रो में आता है, उस रो को मेंशन करके सारी उसकी वैल्यूज निकाल के वो हमने जब पुट करा तो आई हैव गोट द वैल्यू ऑफ x. तो कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आ जाती है. फिर मेरे को गिवन था थर्ड क्वार्टाइल Q3 गिवन था. Q3 की वैल्यू देखी हमने 25, वो किस में आती है उसको अंडरलाइन करके
तो हमने कैलकुलेशन करी इसकी सारी, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास इक्वेशन जो बन जाती है वो बन जाती है x प्लस वाई की फॉर्म में। x आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो y आ जाती है। अब मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, तो z। थैंक्स डियर फ्रेंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to share with others also.